Hello students, how are you all? Okay, so today we start a second part of the chapter Sole Trader. Okay, first part we have already completed and it's uploaded also. Okay, so and we have completed the meaning, definition, objectives and characteristics. So today we start the merits of the chapter. Okay, so the merits of a sole proprietorship. Okay, so the first is easy formation. Yes, because क्या है, it is managed by a single person, individual person. तो इसके लिए क्या है कि ये उनके लिए easy हो जाता है to form. Okay, और इसमें कोई भी legal formalities नहीं चाहिए होती. ये हम objective और characteristics में भी पढ़ चुके हैं. Okay, and the registration of the firm is not required and there is no loss of time. Only a license may be needed in special cases. Yes, ठीक है, इसमें कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन क्या है, इन सम केसेस यू नीड अ लाइसेंस लाइक अ वाइन शॉप और अ केमिस्ट शॉप. तो उसमें क्या है, आपके पास आपकी शॉप का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है. Next is motivation to work. Yes, the proprietor alone is entitled to receive all the profits of the business and he alone has to bear all the losses because he is the king, supreme judge of his business. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो क्या होता है, वो खुद के उसके अपने होते हैं. ओके, सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड. तो इसलिए क्या है, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है कि आप जो एफर्ट्स करते हैं, आप एफर्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो आपको क्या होगा, उसमें रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेंगे. So there is an incentive to work hard. The proprietor is motivated to make the best possible use of his skills and resources to maximize profit. Next is quick decisions. The sole proprietor is completely free to take decisions and to implement them. Okay, so you are a judge or a supreme judge or king of your business. So that is you are liable to take decisions and to implement them. Okay, and आपको किसी भी कंसल्टेशन की या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है. वो अगर आप को लगता है कि जो चीज़ आपने कोई डिसीज़न लिया है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बिजनेस, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं. Okay, next is the proprietor can take on the spot decisions and will therefore not let on any opportunity slip away. अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन ऐसा है आपके बिजनेस के लिए कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकता है, तो आप उसको बिल्कुल जाने नहीं देंगे. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल. Yes, so again the thing is ki the sole proprietor is the supreme judge of all the matters pertaining to his business and he enjoys the complete freedom of action. He has absolute control of his business and nobody can interfere in your work. Okay, तो आप because you are liable to take your decisions, तो आपकी कोई भी वर्क पे क्या कर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता. Yes, personal supervision helps to improve the efficiency of business. That means कि कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको कोई सुपरविजन देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा होगा या ग्रोथ बढ़ेगी या प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इट्स अप टू यू कि आप उस सुपरविजन को लेना चाहते हैं या नहीं. और अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, देयर इज़ अ चांसेस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर बिजनेस. Next is secrecy of affairs. Okay, so the sole trader is not required to publish his accounts. He is not expected to share his secrets with other. Yes, that means कि अगर you have many opportunities or you have a secret or we can say that कि अगर आपके अपने बिजनेस के लिए अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ या कुछ हैं तो आप किसी के साथ उसको शेयर नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आप अपने उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो ताकि आपके मार्केट में क्या हो, आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो. नेक्स्ट इज पर्सनल टच. द सोल प्रोप्राइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज. हमने पहले भी पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद द कस्टमर्स. ओके, कोई भी उसमें मीडिएटर नहीं होता है. ही कैन cater to the requirements of each and every customer. He can also build healthy relations with his employees. Okay, the next is flexibility of operations. A sole trader business is usually small in size and simple in structure. It can therefore be adjusted easily whenever necessary. The proprietor can easily expand or reduce his business operations to suit the changes conditions in the market. Okay, so अब यू आर इंडिविजुअली लायबल फॉर योर बिजनेस. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या रिड्यूस करना चाहते हो. तो आप बिना किसी कंडीशन के आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ही कैन ऑल्सो चेंज और मॉडिफाई हिज लाइन ऑफ बिजनेस वेन एवर नेसेसरी. यानी कि आपका जो बिजनेस का जो लाइन है, यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि पहले आपका मान लीजिए मिल्क प्रोडक्ट्स था, डेयरी प्रोडक्ट था. अब आपको लगता है कि नहीं, डेली प्रोडक्ट की जगह मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर बना लेना चाहिए इसको, तो आप उस चीज़ को भी ईजिली चेंज कर सकते हैं. Next is economy. The proprietor is the owner, manager and controller of business. I think this is very much clear. He does not appoint specialists for various functions.
देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप इज़ इनएक्सपेंसिव। तो क्या है, आपकी शॉप के लिए ऐसा तो नहीं है कि किसी बिजनेस के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट को चाहिए, नहीं। तो इसमें क्या है, आपको किसी भी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो आपके बिजनेस का मैनेजमेंट है वो बैलेंस्ड रहेगा। Minimum government regulation. Sole proprietorship business is free from government regulations. There is no government interference in the day-to-day functioning of business. No legal formalities are included. Okay, and the sole trader is subject to minimum legal formalities and the government restrictions. Sole trader में क्या है, आपका कोई भी गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट की नहीं होती हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिसमें हमने अभी पढ़ा किसमें, कि आपके पास अगर आप यू हैव ओपन अ सम केमिस्ट शॉप और अ वाइन शॉप, तो उसमें आपको क्या है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, दैट यू नीड अ गवर्नमेंट। Next is easy dissolution. It is very simple and convenient to dissolve a sole proprietorship. No specific legal formalities or regulations are involved in dissolution. ओके, यानी कि आपका क्या है, आप कभी भी अपने उस शॉप को डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। सोशल यूटिलिटी. Sole proprietorship provides an opportunity for gainful self-employment to persons with limited money. It offers a way of earning an honorable living to those who do not want to work under others. It also facilitates equitable distribution of income and wealth. It leads to the development of personal qualities such as self-finance, initiative, and responsibility. Sole proprietorship provides equal opportunity to everyone to use his resources and talent to the maximum advantage. It leads to the diffusion of ownership. ओके, द सोशल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि सोल प्रोवाइडरशिप क्या प्रोवाइड करता है, ही गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, ओके, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंडिविजुअली लाइबल हैं किसी बिज़नेस को ओपन करने में, एंड ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो एक तो होगा आपका, ठीक है, और आप उससे क्या होगा, आप उसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस चीज़ अपने को एक्सपोज करने का, अपने को एक्सपोजर देने का, कि इफ़ यू आर लाइबल टू ओपन अ बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से ओपन करके उस पर अर्निंग कर सकते हैं। सो द मेरिट्स आर कंप्लीट। 2 या 4 से ज़्यादा कभी मेरिट्स आती नहीं है इसकी। ओके, नाउ कम टू द डी मेरिट्स। डी मेरिट्स अगेन 2 या 4। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. The financial resources of a sole trader are limited. He has limited funds and his borrowing capacity is limited. His bargaining position is weak. तो इसकी क्या डीमेरिट हैं, तो फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। जो रिसोर्सेज होते हैं सोल ट्रेडर के, वो क्या है, वो लिमिटेड होते हैं, बिकॉज ये सिंगल इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, बिकॉज ओनली सिंगल पर्सन भी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप अकेले उस चीज़ को चला रहे होते हैं, तो क्या है, आप अकेले ही एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के लिए, आप किसी और को उसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकते, ठीक। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लॉसेज ऑफ बिजनेस. आप अकेले ही क्या करेंगे, उस चीज़ को जो भी लॉस होता है आप उसको अकेले ही बियर करेंगे. Fear of loss of personal property due to the failure of business make the proprietor very cautious and conservative. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस लॉस ही लॉस पे जा रहा है, तो क्या करता है, ये प्रोप्राइटर को कंजर्वेटिव बना देता है. The business may fall to grow and keep pace with the new developments in particular field. Risk involved is unlimited. क्योंकि ये बिजनेस में क्या है, रिस्क क्या है, वो अनलिमिटेड होता है, वो कभी भी ज़्यादा होता है और कम होता है. Uncertain life. Sole proprietorship does not enjoy continuity of existence. Okay, it is dependent on the life of the proprietor. Business may come to a standstill due to the illness, insolvency, and death of a proprietor. His successor may not be capable enough to carry on business successfully. The owner and the business are inseparable as the business has no separate legal status. ठीक है. अनसर्टेन लाइफ का मतलब क्या होगा कि मे बी अगर आप कोई किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं एंड फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब से स्टार्टअप किया तब से लेके एंड तक उसी को आप ही चला रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या होता है कि मे बी बिकॉज ऑफ हिज सम प्रॉब्लम लाइक इलनेस, इंसॉल्वेंसी या डेथ हो जाती है अगर उसकी, तो क्या होगा, वो किसी और को बिजनेस पास कर दिया जाएगा, लाइक इन योर फैमिली. ओके, या अगर आप नहीं पास हो सकता या किसी और को लगता है कि वो बिज़नेस आपके बिज़नेस को नहीं चला सकता, तो क्या होगा, वो पूरा बिज़नेस आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन. ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरल रिसोर्सेज देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है. तो इसकी बेसिस पे क्या है कि इसका जो एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है या धीरे स्लो होता है. In the absence of large scale operations, it cannot take advantage of economies of scale.
सो ट्रेडर कैन नॉट अट्रैक्ट ट्रेड एम्प्लॉयज़ ड्यू टू द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर एडवांसमेंट। तो इसलिए सोल ट्रेडर क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और ना ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे पाता है फॉर द कैरियर डेवलपमेंट। Okay, so this demerits are also completed. Next is suitability. The sole proprietorship has several advantages and disadvantages. According to William R. Bassett, the one-man control is the best in the world if the man is big enough to manage everything. Yes, this is very important line कि अगर आपको लगता है that you individually you are if you manage everything that is enough कि आप अकेले ही उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वन मैन कैन रियली मैनेज एंड कंट्रोल एवरीथिंग। यस, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक इंडिविजुअल को हर एक इंडिविजुअल को ये मान लें कि वो अकेले ही कंट्रोल या मैनेज कर सकता है। Okay, so therefore a sole proprietorship is a suitable form of organization in the following cases: when the market is local, that is small scale retailers, where personal attention to the needs and preferences of customers is essential, like tailoring, beauty parlors, etc. ठीक है, ये एक ऐसे स्मॉल स्केल रिटेलर से बिजनेस होता है जिसमें क्या है, सिंगल हैंडेडली कंट्रोल और मैनेज हो जाते हैं। when fashions change very frequently, when small scale amount is capital is required but personal skills are more important, like health cleaning, where quick decisions and prompt actions are necessary, where risk involved is negligible. ओके, वैसे ये सब एग्जाम में आता नहीं है, बट ये है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ओके, सो टुडे we completed the merits, demerits and the suitability. Okay class, so that's for all. Just like, share and subscribe my channel and keep forward to the other students as well. Thank you students.